अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम वेव इक्वेशन को देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, मोशन ऑफ ए स्ट्रिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रिंग की मोशन से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको हम मॉडल कैसे करते हैं। तो इमेजिन दैट अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग। तो आपने एक स्ट्रेच स्ट्रिंग ली जो कि वाइब्रेट कर रही है। The wave equation says that at any position on the string, acceleration in the direction perpendicular to the string is proportional to the curvature of the string. तो वेव इक्वेशन ये कहती है कि जो एनी पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन होगा स्ट्रिंग का वो इसके कर्वेचर के प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज़्यादा वेव्स ऑसिलेटरी मोशन होगी उतना ही ज़्यादा उसकी एक्सेलरेशन होगा। इसमें जो u x ऑफ t है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है और x पोजीशन वेक्टर है और t यहाँ पे टाइम है। द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, लेट x is position on a string, t here is time, u be the displacement of the string at position x and t, and capital T is tension of the string. Rho is mass per unit length. Then this is the wave equation. Rho partial square by partial t square uxt is equal to t partial square over partial x square ux of t. Equivalently, अब इसको हम शॉर्टकट नोटेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, u sub tt is equal to a square u sub xx. A here is t over rho. So this is the wave equation. Solving the one-dimensional wave equation. First we make a wild assumption. Suppose that u is a product of a function of x and a function of t. कि जो u है वो product है function of x and function of t की, like that, जो कि separation of variable की assumption है। ux of t is equal to x of x, t of t. Then the wave equation becomes, अब जब हम ये u जो कि इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन को जब हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे u सब टी टी था, इससे t डबल डैश आया है और x एज इट इज इक्वल टू a स्क्वायर। राइट हैंड साइड में पार्शियल टू u पार्शियल x स्क्वायर था, इसलिए x डबल डैश आया और t t। सो अगर हम t वाली टर्म्स एक तरफ कर दें, t डबल डैश ऑफ t ओवर a स्क्वायर t इज इक्वल टू x डबल डैश ओवर x। तो इक्वेशन अब एक तरफ फंक्शन ऑफ t है, एक तरफ फंक्शन ऑफ x है और दोनों इक्वल हैं। इट मींस दैट ये किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे। The only way for this equation to be true for all x and for all t is for both sides to be constant. That is lambda. T double dash of t over a square t of t is equal to lambda and x double dash of x over x of x is equal to lambda. ये चीज हमने हीट कंडक्शन इक्वेशन में भी एक्सप्लेन की थी और समझ चुके हैं। Expression of variables. Now t double prime over a square over t is equal to x double prime over x is equal to lambda. Means that t double prime minus lambda a square t is equal to 0 and x double prime x minus lambda x of x is equal to 0. So there are two ordinary differential equations. If lambda is less than 0, again अब lambda के तीन options थे, less than 0, greater than 0, equal to 0. If lambda is less than 0, then t of t and x of x are both trigonometric functions. If lambda is equal to 0, they are linear. And if lambda is greater than 0, they are exponential. अगर lambda 0 हो जाए फिर ये linear function बनता है। तो lambda greater than 0 हो जाए तो फिर ये जो कि real roots आते हैं तो फिर ये इसका आंसर exponential में आएगा। But let's not worry about that now. इसको आगे जाके हम explain करते हैं
कि लेमडा इज इक्वल टू 0 और लेमडा ग्रेटर देन 0 पॉसिबल क्यों नहीं है? Therefore, the clarification of the sign of lambda. There are three types of solution of the equation. If lambda is equal to 0, then x of x is linear. X of x यहाँ पे linear हो जाएगा, that is ax plus b. और इस केस में जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई नहीं होती, इसका मतलब लैम्डा 0 वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई. If lambda greater than 0, x of x is exponential like that k e lambda square root t, which also would not satisfy the boundary conditions. इस केस में भी बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती. तो डियर स्टूडेंट्स, एक का ऑप्शन बचा लैम्डा लेस देन 0 का. जब लैम्डा लेस देन 0 होगा तो रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, तो सॉल्यूशन क्या होगा? साइनोसाइड, साइन और कॉस की फॉर्म में, और ये जो है वो बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है लाइक दैट. तो इसका मतलब है कि x डबल डैश ऑफ x माइनस लैम्डा x ऑफ x इज इक्वल टू 0, और यहां से x ऑफ x का आंसर आ जाता है k साइन ऑफ लैम्डा अंडर रूट माइनस इंटू एक्स. और हम ये भी देखें कि लैम्डा, जैसे हमने हीट के इक्वेशन में देखा था कि लैम्डा आता है माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और एल स्क्वायर बाउंड्री कंडीशन की मदद से, ये भी आगे जाके हम चेक करेंगे. बाउंड्री कंडीशंस इन a stringed instrument, each of the fixed, a string is fixed if the string has length l, then for all t u 0 of t is equal to 0 means that x of 0 t of t is equal to 0. और जो दूसरा है x l of t is equal to 0, it implies that x of l t of t is equal to 0. अब जो t है वो तो 0 नहीं होता, इसका मतलब है यहाँ से आ गया x of 0 is equal to 0. और ये देखें, ये बाउंड्री कंडीशंस हैं, ये एंड पॉइंट फिक्स्ड है इसके, दिस इज एंड पॉइंट्स आर फिक्स्ड, इसलिए ये 0 है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं है. Since t does not equal to 0, it means that x of 0 is equal to x of l is equal to 0. Thus, x of x could be a sum of sine terms with zeros at x is equal to l. तो इसका मतलब ये हुआ कि बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद, वैसे तो आंसर आपको पता है ना कि साइन और काज में आता है, तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद जैसे हमने हीट कंडीशन में किया था, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ पे भी सिर्फ साइन वाली टर्म सर्वाइव करेगी, काज वाली टर्म का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा. ओके, अब रह गया टी ऑफ टी निकालना. अभी हम स्लाइड में एक्स ऑफ एक्स निकाल चुके हैं, अब हमें डियर स्टूडेंट्स टी ऑफ टी निकालना. सो नो वी हैव नोट टू थिंग्स. एक तो ये है एक्स डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0 और एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू के साइन एन पाई एक्स ओवर एल. दिस मीन्स दैट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर. ये वही वैल्यू जो हीट इक्वेशन में भी आई थी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा ज़्यादा देर में. अब ये वैल्यू ज़रा टी में पुट करें तो टी इक्वेशन ये बन जाएगी टी ऑफ डबल डैश ऑफ टी माइनस लैम्डा ए स्क्वायर टी ऑफ टी इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द सॉल्यूशन. जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये भी साइन और काज में आएगा, b साइन ए एन पाई टी ओवर एल प्लस c काज ए एन पाई टी ओवर एल. ये टी ऑफ टी का हमारे पास सॉल्यूशन आ गया. ओके, पुट इट ऑल टुगेदर. अब जरा ये वैल्यू पुट कर दें. वी नो हैव ए फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द वेव इक्वेशन, वन फॉर एवरी n. वही बात जो आपने हीट कंडक्शन इक्वेशन में की थी, क्योंकि n आ गया, n आर्बिट्रेरी है, तो वहां पे आपको पता है कि e की जगह मैंने ई एन ले लिया था. ये वही बात कर रहा है कि अब यहाँ सॉल्यूशंस की तादाद ज्यादा हो जाएगी. सो u इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी. तो u का वैल्यू ने पुट कर दी, एक्स ऑफ एक्स जगह रख दिया साइन एन पाई एक्स ओवर एल, इनसाइड आ गया b साइन ए एन पाई टी ओवर एल प्लस c cos a n pi t over n. Suppose we choose an x naught and look at how the displacement varies at this point as t changes. तो ये u हमारे पास एक एक्चुअली सॉल्यूशन आ चुका है. तो ये u है क्या, हमें देखा था शुरू में, u is a displacement at any position x and any time t.
तो u अगर डिस्प्लेसमेंट है तो अब इस सॉल्यूशन से हम देख सकते हैं कि अगर x नॉट को फिक्स कर दिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के करस्पॉन्डिंग वेरी करेगा, और अगर हम टाइम को फिक्स कर दें तो डिस्प्लेसमेंट x के करस्पॉन्डिंग वेरी करेगा। सो u x नॉट ऑफ t, x नॉट का मतलब है कि x नॉट अभी कांस्टेंट है, तो जब देखें ना हम इधर इधर साइन n पाई x और की जगह x नॉट पुट कर देंगे तो ये एक पूरा कोई ना कोई आंसर आ जाएगा जिसको मैंने कैपिटल K कह दिया, दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि अब हम x जगह x नॉट पुट कर दिया। बाकी ये बचा b sin a n pi t over l plus c cos a n pi t over l. So this is the solution at constant x naught. This is the general solution, both variable x and t. So k is equal to here sin n pi x naught over l. This is the equation of a sinusoid. तो ये equation of sinusoid भी कहते हैं, और जिसकी frequency कितनी है a n over 2l, तो ये इसकी frequency है। n यहाँ पे आपको पता है कि इंटीजर है जिसकी वैल्यूज 1 2 3 अप टू सो ऑन, डिफरेंट वैल्यूज हैं। टेक इट हायर। So there are three ways to increase the frequency of a sound producing a higher note. Frequency is equal to this a n over 2l. तो frequency में कह रहा है कि ये तीन ways से हम इसको increase कर सकते हैं, a है, n है और l। l लेंथ कम होगी तब भी frequency बढ़ेगी, n ज्यादा होगा तब भी frequency बढ़ेगी, a ज्यादा होगा तब भी frequency बढ़ेगी। Increase in a continuous change. Okay. ए जो है वो ट्यूनिंग के लिए है जिसमें इंक्रीज ए कंटिन्यूस चेंज ट्यूनिंग, एन जो है इंक्रीज एन डिस्क्रीट चेंजेस ओवर ब्लोइंग प्लेइंग हार्मोनिक्स। एन क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्क्रीट नंबर है ना 1 2 3 4 5 ये सारे डिस्क्रीट नंबर्स हैं, इसलिए कहता है कि यहाँ पे डिस्क्रीट चेंज आएगा। ए यहाँ पे क्योंकि पैरामीटर था आपको पता है टी ओवर रो, टेंशन ओवर रो, तो इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, इसे इसको कंटिन्यूस चेंज कह रहा है। और तीसरा एल, एल के डिक्रीज करने से भी हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। सो डिक्रीज एल मींस दैट अगेन कंटिन्यूस चेंज शॉर्टनिंग द फ्रेटिंग, इसमें हम डिस्टेंस जो है लेंथ जो है उसको शॉर्टनिंग कर रहे हैं। तो एल की वैल्यू भी आर्बिट्रेरी हो सकती है, इसलिए इसको भी हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूस चेंज है। बाउंड्री कंडीशंस फॉर टाइम। With wind instrument, it is now always true that if L is the length of the tube, U0 of t is equal to 0, UL of t is equal to 0. अब देखें ये boundary conditions थी ना for the position. This is true with the flute because the pressure does not change at the ends. अब ये ट्यूब की बात कर रहा है, ट्यूब में भी ये बाउंड्री कंडीशंस वैलिड रहती हैं। However, what happens with some instruments like sax is that, अब देखें अब इसमें डेरिवेटिव पे कंडीशन गिवन, तो समटाइम्स ये देखें जिस तरह में यू ऑफ 0 टी यू एल ऑफ टी यू पे कंडीशंस हैं, इस केस में डेरिवेटिव पे कंडीशंस हैं, व्हिच मींस दैट एक्स ऑफ एक्स फंक्शंस आर कोसाइन टर्म्स रेदर देन साइंस। तो जब ये डेरिवेटिव भी होगा तो ये आप पुट करके निकाल सकते हैं। तो जैसे अभी इन कंडीशंस पे एक्स ऑफ एक्स आया था आंसर साइन साइन लेमडा एक्स, लेमडा अंडर रूट एक्स, तो इस इन कंडीशंस को आप पुट करके आपने वेरीफाई करना है तो आंसर आपका कोसाइन आएगा। ओके तो बस इतना फर्क पड़ेगा कंडीशन से। स्टिल मोर बिजर इज द बिहेवियर ऑफ द क्लैरिनेट, इट हैज बाउंड्री कंडीशंस। इस तरह की बाउंड्री कंडीशंस भी हो सकती हैं। अब ये देखें ये बड़ी इंटरेस्टिंग बाउंड्री कंडीशन, ये सिंपल यू पे थी और ये दोनों डेरिवेटिव पे थी, और ये कंडीशन एक सिंपल यू पे है और दूसरी बाउंड्री कंडीशन आपकी एक्स के ऊपर है, डेरिवेटिव के ऊपर है। Go back and substitute in these boundary conditions to see what happens. तो आपने ये जहाँ पे x of x के रिजल्ट्स निकाले थे वहां पे कंडीशन दोबारा पुट करनी है और देखना है कि x of x का क्या आंसर आ रहा है। तो ये आपकी एक असाइनमेंट हो गई। Standing waves, the harmonics we hear on a string instrument and the overtone on a wind instrument are actually produced by standing waves, which are solution of the form. तो इनका solution इस तरह का होता है। तो ये इसका सोल्यूशन होता है b sin n pi x over l cos a n pi t over l। ये डियर स्टूडेंट्स स्टैंडिंग वेव्स का सोल्यूशन होता है।
ओके, तो स्केचिंग बहरहाल मैंने इसकी नहीं की। तो ये आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है जिसमें आपने वेरीफाई करना है कि सम ऑफ एनी टू सॉल्यूशंस टू द वेव इक्वेशन इज आल्सो सॉल्यूशन, कि अगर वेव इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हैं उनको अगर हम प्लस करें तो वो भी आपके पास सॉल्यूशन बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये करना है कि रीडू द वेव सॉल्यूशन यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस। अब आपने ये बाउंड्री कंडीशंस चेंज कर लेनी है। ये आपका सॉल्यूशन जो है ना इधर आके चेंज होगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये दिस वन, अब देखा ना यहाँ पे आपने कंडीशन यूज की थी ना, ये यहाँ पे आपने कंडीशन दूसरी चेंज करनी है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे आप दोनों डेरिवेटिव्स वाली कंडीशन लगाएंगे। जब यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा यहाँ एक्स डैश आ जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा यहाँ एक्स डैश एफ एल आ जाएगा। तो आपने जो एक्स निकाला उन्हें उसका डेरिवेटिव ले लेंगे और फिर ये कंडीशन पुट करनी है, तो आपके पास आंसर्स आएंगे। तो ये एक आपने प्रॉब्लम दोबारा करना है। ओके, सो हम कहाँ पे थे? इधर थे। So redo the wave solution at these boundary conditions जो कि derivatives पे हैं। Redo the wave equation solution using this। अब आपने इसके लिए निकालना है। अब इसमें एक डेरिवेटिव भी है कंडीशन और एक सिंपल है। फाइंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ सॉल्यूशन, तो आपने यहाँ पे वैसे फ्रीक्वेंसी वगैरह निकाल लेनी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि यूज separation of variables to find a family of solution to the heat equation। आपने बस ये हीट इक्वेशन सॉल्व करनी है, आप पहले भी हल कर चुके हैं और इसके लिए ये बाउंड्री कंडीशंस आपने इंप्लीमेंट कर दी। ये डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपके लिए आज के लेक्चर के लिए काम है, बाकी इंशाल्लाह फिर हम देखते हैं आगे लैप्लास इक्वेशंस की तरफ हम बढ़ेंगे। तो मैंने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दी है।